Hello dear students, how are you all? I hope you all must be going very well. Today students, we are going to start the new chapter of class 6 science, that is chapter number 10 about nature's treasure. Today we will learn about the very essential resources which the nature has provided to us for the existence of life on it. Alright, so now let us understand those resources, their importance in our life. Alright, see. So, first of all, they have given you that you have to dig out some soil and put it in a container. ठीक है, थोड़ा soil आपको dig out करके एक container में put करना है and then slowly you will add water to it, right? ठीक है, फिर आप उसको undisturbed छोड़ देंगे. Can you see, क्या आप उस soil के अंदर से कुछ bubbles को produce होते हुए देख पा रहे हैं? Yes. What is it? ये bubbles क्यों produce हो रहे हैं students? This is the air that was being trapped inside the soil. Actual में ये air थी जो soil के अंदर trap थी. And जैसे ही आपने water को इसमें pour किया तो water उस soil के particles के बीच के space occupy करने की कोशिश कर रहा है. इसकी वजह से air का बाहर आना ज़रूरी है. And वो air किस form में बाहर आ रही है? In the form of bubbles. Now bring your palm close to your nose. अब इसी तरीके से आप अपने palm को अपने nose के close लेके आएंगे and then normally you have to breathe. क्या आप कुछ चीज को, can you feel something which is blowing out from your nose? Now bring your palm close to your mouth. अब उसी palm को अपने mouth के close लेके आएंगे and then mouth के through आपको breathe करना है instead of the nose. Then can you feel something on your palm? Yes, again. What is it? That is air only. ठीक है, ये air है जो कि आप हर वक्त breathe in and breathe out करते रहते हैं. Through your nose also, and if you will try then through your mouth also you could breathe in and out for your what? Air. Now have you ever visited Jim Corbett National Park? ठीक है, क्या आप कभी Jim Corbett National Park में गए हैं? You must have seen that the air in the forest and national park is fresh and cooler than in the city. ठीक है, किसी भी फॉरेस्ट या किसी भी नेशनल पार्क में जो एयर होती है स्टूडेंट, वो एज कम्पेयर टू सिटी ज़्यादा फ्रेश एंड कूल होती है. ठीक है, आप ब्यूटीफुल हिल्स, स्ट्रीम्स एंड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स को वहाँ पर देख सकते हैं. So why this air is very fresh and cool? That is why, see, the pure air जो होगी स्टूडेंट्स वो हमेशा रिफ्रेशिंग होती है एंड सॉइल इतनी फर्टाइल होती है कि वो एक वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स को सपोर्ट करती है. मोर ओवर उस प्लेस में ज़्यादा प्लेंटी ऑफ सनलाइट भी मिल पाती है विच इज़ यूजफुल इन मैनी वेज. ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज हैं जो फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, इंक्लूडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. ऑलराइट, नाउ कैन यू थिंक मोर ऑफ सच ट्रेजर्स ऑफ नेचर? So as we know, air क्या है? Air is all around us. Air हमारे चारों तरफ present है. Air को हम हर वक्त breathe कर रहे हैं. ठीक है, air क्या है? एक form of matter है जिसका mass भी होता है and it occupies space also. But हम air की presence को feel नहीं कर सकते unless जब तक एक strong air blow नहीं करती है in the form of wind. Alright? Now air is a part of every existing matter. Air जो है हर एक existing matter का क्या है? Part है. ठीक है, फिर वो water, तो water में भी students air dissolved होती है. ठीक है, जो air water में present है उसी air की वजह से aquatic plants and animals क्या कर पाते हैं? Oxygen receive कर पाते हैं and then उसी oxygen का plants use करते हैं to prepare the food and animals use for respiration. एक्वेटिक एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स भी होते हैं जिसके थ्रू वो एनिमल्स उस एयर को डिसॉल्व कर पाते हैं विच इज प्रेजेंट इन वाटर. ठीक है, एनिमल्स लाइक फिश, टेडपोल्स, क्रैब्स, व्हाट दे हैव अ स्पेशल ऑर्गन नोन एज गिल्स एंड गिल्स के थ्रू ही एक्वेटिक एनिमल्स डिसॉल्व्ड एयर को द वाटर उसे ब्रीथ करते हैं. एयर इज ऑल्सो ट्रैप्ड इनसाइड द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. एयर सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर भी ट्रैप्ड होती है. अर्थवॉर्म, स्नेल, जितने भी स्मॉल एनिमल हैं जो सॉइल के अंदर रह रहे हैं वो इसी एयर को रेस्पायर करते हैं. प्लांट्स की रूट्स को भी इसी एयर की रिक्वायरमेंट होती है. द बरोज एंड द होल्स जो कि एक एनिमल के थ्रू डग किए जाते हैं, ये क्या एक पाथ प्रोवाइड करते हैं उन एनिमल के लिए जिसके थ्रू एयर उसमें अंडर द सॉइल मूव कर सके फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ब्रीथ इनसाइड द सॉइल.
एयर फिल्स अप एनी अवेलेबल एम्प्टी से। एक्चुअल में एयर क्या करती है, जितना भी अवेलेबल एम्प्टी स्पेस होता है उस सारे स्पेस को एयर ऑक्यूपाई कर सकती है, ठीक है। व्हेन यू लुक एट द बॉटल, अगर आप एक बॉटल को देखें जिसमें आपको कोई भी चीज़ अंदर नहीं दिखाई दे रही है, तो उससे आप क्या कहोगे कि बॉटल इज एम्प्टी, बट एक्चुअल में दैट इज नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज उस एम्प्टी बॉल के अंदर भी जो स्पेस प्रेजेंट है वो एयर से फिल्ड है, एंड दिस इज व्हाई वी से दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ऑलराइट, चलो now the presence of air can be felt when the leaves of a tree rustle। अब air प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ हर वक्त हर जगह, इसकी प्रेजेंस को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो आप? सी व्हेन द लीव्स ऑफ अ ट्री रसल, एक ट्री की जो लीव जब रसल करती हैं, मूव करती हैं, देन यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। सिमिलरली द क्लोथ्स जो कि एक क्लोथ्स लाइन के ऊपर हैंग कर रहे हैं, ठीक है, वो स्वे करते हैं, all right, when they are drying up, that is also the observation which determine the presence of air around us, ठीक है। और the pages of an open book begin to flutter once the fan is switched off। तो एक open book के जो pages होते हैं वो भी क्या flutter करना शुरू कर देते हैं जैसे ही आप fan को switch on करोगे, that means air is being blown over there, ठीक है। now moving air, students, moving air को what we call it wind, ठीक है। कभी कभी ये एयर बहुत फास्टली मूव करती है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एंड समटाइम्स काफी जेंटली ब्लो करती है एज अ ब्रीज। नाउ वी कम टू द टॉपिक दैट इज एटमॉस्फेयर। सो द एनवेलप ऑफ एयर, एक ऐसा एनवेलप एयर का जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जो कि अबाउट 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस तक क्या है, एक्सटेंडेड है, ठीक है। एट द टॉप ऑफ अ हाई माउंटेन, एक ऊंचे से माउंटेन के टॉप पर देयर इज सो लिटिल एयर, बहुत कम एयर वहां पे प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाई वी हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। धीरे धीरे ये एटमॉस्फेयर स्पेस में मर्ज हो जाता है जहाँ पे देयर इज नो एयर प्रेजेंट एट ऑल। ऑलराइट, you could see they have shown you the different layers of atmosphere। सबसे पहले troposphere, then stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere। These are the 5 layers of the atmosphere। Now what is the importance of air? Air की importance क्या है students? Number 1, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो हमारे एयर में प्रेजेंट है उसे हम ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, एंड ऑल्सो फ्यूल के बर्निंग के लिए यूज किया जाता है फॉर द वेरियस पर्पसेस। सेकेंडली, एयर वाटर साइकिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्डली, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है इसे प्लांट्स कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टू मेक देयर फूड। देन नाइट्रोजन जो कि एयर का मेजर कंपोनेंट है, उसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिन्हें हम यूज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, एंड देन टू गेट द मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, नाइट्रोजन एसेंशियल है आपके ह्यूमंस की ग्रोथ के लिए, उनके बॉडी रिपेयरिंग के लिए भी। नेक्स्ट, मूविंग एयर। मूविंग एयर आपके फ्लावर्स पॉलिनेशन में एंड सीड डिस्पर्जन में भी हेल्पफुल है। मूविंग एयर को यूज किया जाता है विंडमिल को ड्राइव करने के लिए, सो दैट ग्रेन्स कुड बी ग्राइंडेड, अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ आउट किया जा सके, टर्बाइंस को टर्न किया जा सके, और द जनरेटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसके थ्रू द ग्रेन्स कुड बी ड्राई, पल्सेस एंड वेट क्लोज टू। नेक्स्ट, बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स, ये सभी फ्लाई कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की वजह से आपके हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, बलून्स, याच, पैराशूट्स, दे ऑल वर्क ड्यू टू एयर ओनली। एयर आपके व्हीकल्स के व्हील जो होते हैं उनके ट्यूब्स में भी फिल करी जाती है, एज साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक्स एक्सेट्रा, सो दैट दे कुड मेक देम मूव स्मूथली एंड ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्रेस्ड एयर को हम हाइड्रोलिक प्रेसेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स में यूज करते हैं, सो दैट एक मूविंग व्हीकल को स्टॉप किया जा सके। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर का मशीन्स में भी यूज किया जाता है, जिसको हम माइनिंग एंड डिगिंग के लिए यूज करते हैं। एंड द लास्ट, एयर का यूज फार्मर्स भी करते हैं ग्रेन्स में से हस्क को सेपरेट करने के लिए इन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। देन यू कुड सी दिस विंडमिल। ठीक है, सो इस विंडमिल की जो वर्किंग है वो बिल्कुल सिमिलर है एज दैट ऑफ अ पिन व्हील। ठीक है, विंड के थ्रू ये जो विंडमिल की विंग्स होती हैं ये रोटेट करती हैं, एंड फिर इन विंडमिल्स का यूज किया जाता है टू रन द फ्लावर मिल्स, टू पुल अप द वाटर फ्रॉम अ वेल, और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंडिया में देर आर मेनी विंडमिल फार्म्स,
ठीक है। एक विंडमिल फार्म क्या होता है? विंडमिल फार्म एक ऐसा एरिया है जिसमें काफ़ी सारे विंडमिल्स होते हैं जो कि विंड की एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो इन इंडिया वी हैव मेनी विंड फार्म्स। नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, एयर के कॉम्पोजिशन को पढ़ेंगे। सो अंटिल द 18th सेंचुरी तक स्टूडेंट्स पीपल थॉट कि एयर एक सिंगल सब्सटेंस था, लेकिन लेटर ऑन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इट वाज प्रूव्ड कि एयर एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है, बल्कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, वाटर वेपर एंड आल्सो डस्ट पार्टिकल। ऑलराइट, so what are the different components of air? That is nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor. 78% around nitrogen है, 21% oxygen, 0.035 carbon dioxide and water vapor आपका वेरी करता रहता है। ऑलराइट, सो एयर का जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, व्हाट डज इट रिवील? कि आपकी जो टू गैसेस है, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों ही अबाउट एयर का 99% फॉर्मेशन करती है। रिमेनिंग 1% के अंदर बाकी सारी गैसेस इंक्लूडेड हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन एंड वाटर वेपर एंड ऑल्सो डस्ट पार्टिकल्स। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक लाइफ सेविंग गैस है जो एयर में अवेलेबल है। हमारी एयर का 21% कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किससे हुआ है? एयर, ऑक्सीजन से। सभी लिविंग बींग्स को एयर की रिक्वायरमेंट होती है टू ब्रीथ एंड सर्वाइव। एक्चुअल में उस एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना स्टूडेंट, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग। ऑलराइट, सो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं जो एयर में प्रेजेंट है। जिस ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हो वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर जाके फूड के साथ कंबाइन होती है एंड देन फूड का ब्रेक डाउन होता है टू डिराइव एनर्जी। सो इस एनर्जी के प्रोडक्शन के साथ साथ इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन प्रोसेस। एंड इसी एनर्जी के थ्रू क्या जो एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दैट हेल्प अस टू डू वर्क। सेकेंड वी हैव कंबशन। ऑल फ्यूज, सभी फ्यूज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं इन द बर्निंग प्रोसेस। एंड इसी बर्निंग ऑफ थिंग को कहा जाता है कंबशन। ठीक है, कंबशन आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं हो सकता है, रिमेंबर इट। ऑलराइट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अर्थ। व्हाट दे सेइंग कि एयर जो है स्टूडेंट अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एज वी गो हायर एंड हायर, जितना आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है एंड एयर थिन होती चली जाती है। इसीलिए जो क्लाइंबर है, जो उस हाई पीक पर चढ़ रहा है, उस पर्सन को ब्रीद करना एट द हाई ऑल्टीट्यूड डिफिकल्ट फील होने लगता है, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। इसीलिए माउंटेनियर्स जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ कैरी करते हैं। ठीक है, द सेम थिंग हैपन्स जब हम क्या, ये सेम चीज सब होती है जब हम सीज या ओशंस में एक ग्रेटर डेप्थ में जाते हैं। जितना गहराई में आप जाओगे सीज एंड ओशंस में, सेम थिंग वुड हैपन ओवर देयर ऑल्सो। ठीक है, इसलिए डाइवर्स भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है उन पेशेंट्स को जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम से सफर करते हैं। ऑलराइट, चलो, सो दिस वाज द constituent of air. Now next we come to the major component of air, that is nitrogen. ठीक है, so air में there are other components also present, ठीक, but they do not support burning. अब ये जो component air का, ये burning को support नहीं करता, and major part of air जो कि आपके burning को support नहीं करता, that is nitrogen. नाइट्रोजन अराउंड हमारी एयर का 4/5 पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, that is about 78% of nitrogen is present in our atmosphere. Now what is the importance? नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, नाइट्रोजन नीदर बर्न्स नॉर हेल्प्स इन बर्निंग। ना तो वो खुद बर्न होता है, ना ही वो हेल्प करता है बर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती तो फायर को एक्सटिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन्स का, एंड वी नो कि प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। इट इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स, एक्चुअल में स्टूडेंट्स ना तो प्लांट्स और ना ही एनिमल्स इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स के लिए सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि
इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन सभी लिविंग बींग्स इस यूजेबल नाइट्रेट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं या फिर इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। एंड इस प्रोसेस को, जहाँ पे एक नाइट्रोजन गैस को यूजेबल नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑलराइट, चलो now next we have what carbon dioxide. So we know that living beings ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। 0.03% जो है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसमें। एंड इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस, जब कोई भी प्लांट या एनिमल मैटर बर्न करता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। स्टिल जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट है, ये परसेंटेज एटमॉस्फेयर में, वो समहाउ कांस्टेंट ही रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देयर इज एन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल विच कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट्स इन द एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस किया जाता है या एज ए रिजल्ट ऑफ कंबशन प्रोड्यूस किया जाता है बाय द एनिमल्स, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस आपके टू मेजर प्रोसेस हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस रखते हैं या मेंटेन रखते हैं इन द एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज वाटर वेपर। सो लीव अ मेटल स्पून आउटसाइड ऑन अ कोल्ड फ्रॉस्टी नाइट। अगर आप एक मेटल स्पून को कोल्ड फ्रॉस्टी नाइट में बाहर रख दें तो मॉर्निंग में व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू वेक अप? You will see कि स्पून के ऊपर there are water droplets present। ये water droplets किस वजह से बने? water vapors की वजह से बने which was present in the air। So water vapors क्या है? water vapors water की gaseous form होती है and we have learned कि water vapor air में add होता है through the process of evaporation in the water cycle। ठीक है, plants भी water vapor add करते हैं air में transpiration process के through। Alright, वाटर वेपर वन ऑफ द कंपोनेंट है हमारे एयर का, और इसका जो अमाउंट है या परसेंटेज है वो प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम वेरी करता है। ठीक है, सी हैव यू एवर फेल्ट कि समटाइम्स नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू वाइप अ स्वेट और कूल योरसेल्फ, यू फील स्टिकी। व्हाई? बिकॉज वेदर जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड है। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी है कि हमारे एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अगर देयर इज लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर तो ह्यूमिडिटी हाई होगी, एंड जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, उतना ज्यादा आपको बाहर वेट फील होगा। कोस्टल एरियाज में काफी ग्रेट परसेंटेज होता है ह्यूमिडिटी का एज कंपेयर टू अदर एरियाज। वी नो दैट कि वाटर वेपर अर्थ सरफेस पे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड हेल। किसके थ्रू? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। एंड एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उनकी वजह से ही मिस्ट, फॉग एंड ड्यू जैसी कंडीशंस होती हैं जो कि एक एरिया के वेदर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एंड वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऑलराइट, सो देयरफॉर जो वाटर वेपर का प्रेजेंस है वो काफी एसेंशियल है एंड हमारे नेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट? डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, dust particles and smoke are always present in the air, though we may not be able to see them। भले आप उन्हें देख ना पाए लेकिन वो हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं। एयर के अंदर कुछ पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जैसे कि डस्ट, पॉलन एंड फाइबर। उसके अलावा स्मोक, ऐश, कोल एंड मेटल पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। एक्सेस ऑफ स्मोक, जब बहुत ज़्यादा स्मोक एंड डस्ट प्रेजेंट होता है हमारे एयर में, उससे पोल्यूशन होता है। एंड एयर में डस्ट एंड स्मोक की प्रेजेंस को देखने के लिए हमें ग्रीस या वेस्लीन अप्लाई करना चाहिए एक पेपर पर, एंड देन आप उसको अनडिस्टर्ब एक दिन के लिए बाहर, घर से बाहर हैंग कर दीजिए। यू विल सी कि जितने भी डस्ट या अदर पार्टिकल्स हैं वो उस ग्रीस्ड पेपर के ऊपर स्टक हो चुके हैं। ऑलराइट, सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस डिस्कशन वी कैन से कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ऑलराइट, चलो, now next topic which we have is that is air pollution। So we all know that excess of dust and smoke add to air pollution। जब बहुत ज़्यादा excess amount में dust या smoke air में add हो जाता है उससे air pollution होता है। and air pollution air को unclean and harmful बनाता है for the purpose of breathing। air pollution की वजह से ही several lung diseases होती हैं, skin problems हो सकती हैं।
Now, what are the causes of air pollution? So they have given you, जैसे कि industries, dust, agriculture practices, means of transportation, poor waste management and household energy consumption. इन पिक्चर्स में जितनी भी एक्टिविटी स्टूडेंट्स आपको गिवन है, ये सभी एक्टिविटीज़ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जो कि अर्थ के टेम्परेचर को भी इंक्रीज करती है. ठीक है, एंड इट में रीच एन अलार्मिंग पॉइंट इफ नॉट कंट्रोल नाउ. अगर हम इसे अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये एक अलार्मिंग पॉइंट पे बहुत जल्द ही पहुंच जाएगी. वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. अर्थ का वार्म होना या उसके टेम्परेचर का एक अलार्मिंग रेट पे इंक्रीज होना, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, एंड ग्लोबल वार्मिंग का जो मेजर रीजन है दैट इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है उसका इंक्रीज होना इज अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, नाउ दे हैव गिवन यू द मेन कॉजेस of the increasing amount of carbon dioxide in the atmosphere. That is cutting of trees का कट होना, fossil fuels का overuse होना, and also increasing number of industries and decreasing forest. Number of industries बढ़ती जा रही है and forest जो है वो घटते जा रहे हैं. ये भी एक major reason है of increasing amount of carbon dioxide in the atmosphere, which causes air pollution further. Next we have water. वाटर क्या है? वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड ऑन द अर्थ, राइट. जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं सभी को वाटर की रिक्वायरमेंट है टू लिव. हमारी बॉडी को भी वाटर चाहिए टू फंक्शन प्रॉपरली. एंड इसके अलावा भी वी यूज वाटर फॉर मेनी एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इरिगेटिंग फार्म्स, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ऑल्सो फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. सो वाटर इज प्रीशियस. वाटर जो है स्टूडेंट्स काफी प्रीशियस होता है, इसीलिए इसे हम बहुत एफिशिएंटली एंड जुडिशियली यूज करेंगे. ठीक है, द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर. फ्लोइंग वाटर की जो पावर है उसी का आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. वाटर जो है अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर करता है इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स. हाउएवर जो बहुत ही लिटिल ऑफ दिस वाटर, इस पानी का बहुत ही लिटिल अमाउंट है जो कि फिट होता है फॉर द ह्यूमन यूज. रिवर, लेक्स, वेल, अंडरग्राउंड रिजर्वोयर्स एंड रेन वाटर, ये सभी मेजर सोर्सेज हैं वाटर के विच वी कैन यूज. ऑलराइट, उसके बाद वी यूज फ्रेश वाटर. अपने एवरीडे लाइफ के यूजेस को सेटिस्फाई करने के लिए हम फ्रेश वाटर का यूज करते हैं, जो कि आइस शीट और स्नो, रिवर्स और लेक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड अंडर द ग्राउंड, केवल यही प्रेजेंट है. फ्रेश वाटर जो कि आइस शीट एंड स्नो या अंडरग्राउंड वाटर में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, उसे एक्सेस करना काफी डिफिकल्ट है. ठीक है, फ्रेश वाटर जो कि पॉन्ड, रिवर, लेक्स एंड वेल में प्रेजेंट है, उस फ्रेश वाटर का बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है जो कि इजीली एक्सेसिबल है. एंड जो वाटर हम इन सोर्सेज से बाहर निकालते हैं वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, उसे प्योर बनाना पड़ता है. ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसे इम्प्योर बनाते हैं. एंड इन सभी सब्सटेंसेस को जो कि वाटर को इम्प्योर बनाते हैं, दे आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज. सो टू मेक वाटर फिट फॉर ह्यूमन यूज हमें उसके इम्प्योरिटीज को रिमूव करना जरूरी है. वाटर इज ऑफन नॉट यूज एफिशिएंटली इन अवर डेली एक्टिविटीज. डेली एक्टिविटीज में भी हम इसका एफिशिएंटली यूज नहीं करते हैं. Have you observed that water being wasted in your daily activities? So let us find out the activities where the water is wasted. ठीक है, so यहाँ पे आपको इन एक्टिविटीज को गिवन है जहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे वाटर वेस्ट हो रहा है. एंड उस वाटर वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए व्हाट कुड बी द वे, दैट इज हैंड वॉशिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, टेकिंग शॉवर, कुकिंग, गार्डनिंग, ब्रशिंग टीथ. ठीक है, चलो. सो लुकिंग एट द टेबल वी शैल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटी जिसमें वाटर का वेस्टेज हो रहा है. सो देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिससे वाटर के वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टर्निंग ऑफ द टैप्स व्हेन नॉट इन यूज. जब आप टैप्स पानी का यूज नहीं कर रहे तो उस टाइम पे हमें टैप्स को टर्न ऑफ कर देना चाहिए. वाटर लीकेजेस अगर कहीं है तो उसे फिक्स करना चाहिए. वाटर को रिसाइकिल करना चाहिए. वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए. दैट ऑल्सो हेल्प्स इन सेविंग वाटर. सो इंडिया इज ब्लेस्ड. इंडिया ब्लेस्ड है कि इंडिया के पास न्यूमरस रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक है. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ हमारी जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूट होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द होम्स एंड इंडस्ट्रीज.
पॉल्यूटेंट्स जैसे कि केमिकल, ट्रैश, सीवेज एंड थिंग्स लाइक प्लास्टिक बैग्स एंड रैपर्स, इन्हें आप देख सकते हो कि ये वाटर बॉडीज के सरफेस पे फ्लोट करते हुए दिखते हैं। ठीक है, हम फ्रेश वाटर सोर्सेज को पोल्यूट करते हैं ट्रैशेस को उसमें थ्रो करके, ट्रैशेस मीन्स वेस्ट मटेरियल्स को थ्रो करके, एंड ये पोल्यूटेड वाटर जो है लिविंग बीइंग्स के कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, राइट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वन ऑफ द मेथड्स फॉर कंजर्विंग वाटर। वाटर को कंजर्व करने का वन ऑफ द मेथड इज वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं या बड़े बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जहाँ पे रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है एंड देन इट इज अलाउड टू सीप इनटू द ग्राउंड। ठीक है, और समटाइम इसको आप एक बड़े बड़े क्वांटिटीज में भी स्टोर कर लेते हैं फॉर द लेटर यूज। दैट इज व्हाट इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, इस तरीके से क्या जितना भी बारिश का पानी है उसे क्या पहले इकट्ठा करके या तो हम अंडर द ग्राउंड उसको सीप होने देते हैं या बड़े वाटर स्टोरेज क्वांटिटीज में उसको स्टोर कर लेते हैं सो दैट आप उसको लेटर ऑन यूज कर सके। ऑलराइट, चलो, इट इज एन ओल्ड एज प्रैक्टिस, एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत पुरानी प्रैक्टिस है वाटर को कंजर्व करने की इन इंडिया। ठीक है, स्टेप वेल जिन्हें हम कॉमनली बावड़ीज और बवाड़ीज कहते हैं, कहाँ? राजस्थान में, एंड वाव्स इन गुजरात, इन्हें बनाया जाता था वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सो दैट अगर इन रीजन्स में जब पानी की कमी होती थी, स्कैर्सिटी होती थी, तो उस टाइम पे इस पानी का यूज किया जा सके। ये स्टेप वेल्स में एक यूनिक सिस्टम था वाटर हार्वेस्टिंग का। ये केवल रेन वाटर को ही स्टोर नहीं करते थे बल्कि जो वाटर किसी भी नियर बाय लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर्स में सीप हो रहा है उसे भी स्टोर कर लिया जाता था। द वॉल्स ऑफ द ट्रेंचेस, ठीक है, ट्रेंचेस की जो वॉल्स थी, ट्रेंचेस मतलब द लॉन्ग डीप होल्स जो कि ग्राउंड में डग किए जाते थे, इनकी वॉल्स में कुछ ब्लॉक्स जो है स्टोन के उन्हें लाइन अप कर दिया जाता था जो कि वाटर के सीपेज को अलाउ करते थे। राइट, चलो, now next we have what, sun energy. As we all know, sun is the main source of energy on the earth, right? सभी living beings इसी energy के ऊपर dependent है in one way or the other. And earth पे without sun life was not really possible because sun main source है energy का on the earth. सबसे पहले plants को energy किससे मिलती है? sun से मिलती है, and then plants food produce करते हैं। उसके बाद animals इन्हीं plants को खाते हैं and grow करते हैं। ठीक है, हमें फूड एनिमल एंड प्लांट्स दोनों ही से ही मिल सकता है। सो ये जो साइकिल है अर्थ पे, ये तभी पॉसिबल है ड्यू टू सन। सो देयरफॉर वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द सन एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, चलो, द सोलर पैनल्स। ठीक है, जो सोलर पैनल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि इस तरीके से कुछ सी, ये रूफ टॉप सोलर पैनल्स है हमारे घर में, ये सोलर पैनल स्टेशन है पूरा, ये सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट्स हैं। ओके, सो इस तरीके से जो सोलर पैनल्स होते हैं सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो सन की जो एनर्जी है उसे आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो फॉर कुकिंग इन अ सोलर कुकर और फॉर हीटिंग वाटर इन अ सोलर वाटर हीटर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट रिसोर्स ऑन द अर्थ इज फॉरेस्ट। Now, where do we find a large variety of plants and animals? एक large variety of plants and animals को आप एक forest में फाउंड कर सकते हैं। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट ऐसे लार्ज एरियाज हैं जहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट की डेंस ग्रोथ को देखा जाता है। फॉरेस्ट एक नेचुरल होम है फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। फॉरेस्ट फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। इन नेचर पे हर एक एनिमल किसी न किसी लाइफ फॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। एंड जो डाइवर्सिटी है लाइफ फॉर्म्स की वो इंश्योर करती है फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग without disturbing the natural balance between various forms of life. So with the increase in population, जैसे जैसे population का increase हो रहा है स्टूडेंट, residential purposes के लिए more land is being required, right? And जो forest cover है वो decrease होता जा रहा है mainly due to human activities, जैसे कि large scale cutting of trees for making new houses and to cultivate more land. ठीक है, टू फीड अ लार्जर पॉपुलेशन। इतनी सारी पॉपुलेशन के रहने के लिए घर बनाने पड़ते हैं, नए घर बनाने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेट करना पड़ता है बिकॉज इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड भी करना है। तो इस सभी पर्पसेस के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है डे बाय डे। ठीक है, एक न्यू फॉरेस्ट के ग्रो होने में या एक लॉस्ट फॉरेस्ट को रिस्टोर करने में इट टेक्स मेनी ईयर्स।
इसीलिए वी मस्ट प्रिजर्व एंड यूज फॉरेस्ट ड्यूरेशन। मॉनसून एक राइट सीजन है न्यू ट्रीज को प्लांट करने का। वन महोत्सव एक फॉरेस्ट फेस्टिवल है जिसमें न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज को प्लांट किया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अमंग द पीपल। एंड इस इवेंट का जो एम है वो क्या है, ग्रीन कवर को इंक्रीज करना। दैट इज वन महोत्सव एक वीक का लॉन्ग इवेंट है जो कि अक्रॉस द कंट्री सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। इन द फॉरेस्ट में क्या, देयर आर लॉट ऑफ लीव्स जो कि ग्राउंड पर प्रेजेंट होती हैं एंड सॉइल ऑफन फील्स डैम्प। तो प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो इन सॉइल को होल्ड करती हैं एंड इट प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। सो जितनी भी लीव्स ट्रीज से नीचे गिरती हैं वो डिके हो जाती हैं, सॉइल को एनरिच करती हैं विद द न्यूट्रिएंट्स एंड इसी सॉइल को फिर न्यू प्लांट्स यूज करते हैं, ट्रीज यूज करते हैं टू ग्रो, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकलिंग इन द नेचर। Alright? Next we have what? Soil, rocks and minerals. As we know, the rocks can be seen on barren land. Rocks को आप एक barren land पे देख सकते हो, mountains पे and also valleys. इन्हें houses के constructions के लिए, building, temple, road, dams and tabletops, इन सभी के constructions के लिए rocks का use किया जाता है। अब कुछ ऐसे रॉक्स हैं लाइक स्लेट जिन्हें हम रूफिंग के लिए यूज करते हैं, लेटराइट जिसे एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज किया जाता है लाइक ब्रिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट रॉक्स गिवन है दैट इज ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल। रॉक्स वर द फर्स्ट टू, रॉक्स ही ऐसे पहले टूल्स थे जिसको ह्यूमन बींग्स ने यूज किया था। ऑलराइट, यू कुड सी रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक्स किसके बने होते हैं? मिनरल्स के बने होते हैं एंड वो मिनरल्स जिससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है दे आर कॉल्ड ओर्स। इंपॉर्टेंट मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, आयरन, इन्हें हम मिनरल्स से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स को हम फिर उसके बाद एरोप्लेन, कार्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक मोबाइल फोन्स हम यूज करते हैं उसके अंदर भी डजन ऑफ मिनरल्स है लाइक सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। रॉक्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1000 से मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है रॉक्स की फॉर्मेशन के लिए, सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व एंड यूज देम आल्सो वेरी जुडिशियल। नेक्स्ट वी हैव फॉसिल फ्यूल्स। सो मोस्ट व्हीकल्स, ज़्यादातर व्हीकल्स जो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हो उसमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज किया जाता है। ऑलराइट, so the fuels which are obtained from the fossils of plants and animals that were buried under the earth crust millions of years ago are called fossil fuels. What they're saying, वो fuels जो कि हमें plants and animals के fossils से मिलते हैं, ठीक है, जो कि earth surface के अंदर millions of years ago buried हो गए थे, उन्हें हम fossil fuels कहेंगे। ठीक है, so they are formed essentially, इनका formation किससे होता है? एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स के रिमेन से होता है जो कि डीप इनसाइड द अर्थ बरिड हो गए थे एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है इन फ्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए। ऑलराइट, द रीजन इज दैट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल एंड डीजल का यूज होता है, एरोप्लेन में एक स्पेशल वैरायटी का कैरोसिन यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। ठीक है, चलो सब कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यहाँ पे गिवन है लाइक पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन आपके पेट्रोलियम से मिलते हैं। ठीक है, द नेचुरल गैस को कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वी यूज नेचुरल गैस। नाउअडेज नेचुरल गैस आपके कॉम्प्रेस नेचुरल गैस के फॉर्म में भी है जो कि एक फ्यूल होता है फॉर द व्हीकल्स। ठीक है, सीएनजी वी कॉल इट इन शॉर्ट फॉर्म। तो सीएनजी एक क्लीन फ्यूल है एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल ऑल्सो। ठीक है, देन कोल को मेनली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए एंड इसको हम लार्जली थर्मल पावर स्टेशंस पे यूज करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आपके लिमिटेड क्वांटिटीज में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इन फ्यूल्स को जुडिशियली यूज नहीं करेंगे इट विल सून रन आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इसीलिए अगर हम इन्हें इसी तरीके से जिस मैनर में अभी करंटली हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, इफ वी कंटिन्यू टू यूज देम इन द मैनर ओनली, सो वेरी सून वी शैल नॉट बी लेफ्ट विद एनी फॉसिल फ्यूल। ऑलराइट, सो जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है जिससे एयर पोल्यूट होती है।
सो ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, तो ये जो हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए या एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट, लार्ज स्केल एयर पोल्यूशन हो रहा है। एंड इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज को एक्सप्लोर करना चाहिए, लाइक टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और सोलर एनर्जी. So they have given you some of the ways to conserve the fossil fuels, like what, कि walking or cycling. कोई नियर बाई स्पेस तक जाने के लिए आपको वॉकिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग यू कुड डू, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें यूज करना चाहिए. ऑलराइट, चलो. देन वी हैव व्हाट टॉपिक, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस. So essential resources that are provided by mother nature to sustain all life forms on the earth are called natural resources. जितने भी essential resources जो हमारी मदर नेचर के थ्रू हमें मिले हैं लाइफ फॉर्म्स के सस्टेनेबल के लिए, सस्टेनेंस के लिए ऑन द अर्थ, दैट आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. फर्स्ट ऑफ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑल दोज रिसोर्सेज जो कि रिन्यूड हो सकते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं या रीस्टोर हो जाते हैं एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एयर, वाटर, फॉरेस्ट, ये सभी आपके एग्जाम्पल्स है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के. ठीक है, कुछ रिसोर्सेज रिन्यूड होते हैं, रिप्लेनिश्ड होते हैं इन द नेचर, एंड इसीलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज का जुडिशियली यूज करना चाहिए. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो फ्यूल्स लाइक फॉसिल फ्यूल्स, ये आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लेते हैं टू फॉर्म. ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटीज में प्रेजेंट हैं एंड वंस दे आर यूज्ड दे विल गेट एग्जॉस्ट. ऑलराइट, वाई? बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड, ये आपके रिप्लेनिश्ड या रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, इसीलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल, सॉइल, रॉक्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑल ऑफ दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज का स्टूडेंट्स यूज किया जाता है काफ़ी सारी यूजफुल थिंग्स बनवाने के लिए फॉर आवर कन्वीनियंस. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब, फर्नीचर, सोलर पैनल, बाईसाइकिल एक्सेट्रा, ये सभी हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं. एंड ये सारे रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग्स के थ्रू क्रिएट किया गया है एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ऑलराइट, चलो. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं चाहे वो आपका नेचुरल हो, ह्यूमन मेड हो, वी शुड यूज देम जुडिशियली. व्हाई? सो दैट वी कुड रिड्यूस पोल्यूशन and could have a sustainable lifestyle ahead. All right, that's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood all the different types of resources which are provided to us by our mother nature as a treasure and also to sustain life on the earth. Now let's meet very soon in the next session. Till then, keep learning well and thanks to everyone.